Hi students, this is Ashok from Modern St. Joseph Public School. I hope you are staying at your home and saving your life. As you know, the world is suffering from the greatest pandemic, that is coronavirus. Though coronavirus was just familiar to all of it, but do you know that was the annual virus, but now it has got the mutation and it has come to be known as human virus, and that's why it is known as COVID-19, as it has been discovered in 2019. Anyways, you are spending your time and you have got a very good chance for your self-study, because there is no school, no tuition, no coaching, but keeping yourself silently in a room and having a self-study is also a boredom thing. And having some doubts in the classes, when you were in the school or when you were in the coaching, you had some doubts and it was cleared by your teachers. But just keeping yourself at home is really a tragedy for all of us. But keeping all these things in mind, I thought, so why don't I just record a video so that my student can be benefited by clearing. I'm just going to clear the conception, as we were studying trigonometry, and you might have just familiar about the angle relation, trigonometrical relation, trigonometrical ratio, identities. Now trigonometry has one more thing. एक और चीज है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स दो ट्रिग्नोमेट्री is not a new is a new for you, for especially 10th standard students, but it is not new. It is very old mathematics. It was earlier, it was used in the earlier for astronomer. It is used in the physics, geography and everywhere. Now what you have to do, you have to study the same thing of trigonometry, that is the application which is concerning of height and distance. तो height and distance मतलब आप trigonometrical ratio, जो कि इससे पहले मैंने बताया था कि you can remember the trigonometrical ratio very nicely by what? Pandit Badri Prasad. Pandit Badri Prasad. Sine, cos and tan. Pandit Badri Prasad Hari both. Means sin theta is having with the perpendicular by hypotenuse cos theta, base by hypotenuse and perpendicular by base of tan theta, and in the same you can get the opposite of cosec, sec and cot. Anyways, what you have, height and distance means you have to find out the height of any tree, height of any building, height of, or you can say you are staying somewhere else and you want to get it, the wideness of that particular area, like river is river is flowing and you are on the breeze and you want to get the measure of wideness of the river. So by applying application in trigonometry, that ratio and angle ratio, you can get the solution of it. But before it, firstly you should know what should be the terminology of height and distance. The first terminology of height and distance is when a person, say here it is a person, okay, having height of 1.8 meter, okay, and there is a kind of building, you know, it has a building. So he observes the top of the building. He observes
the top of the building. Now you can see this is called horizontal line. Horizontal line. And this is, if you can get the geometrical figure, so it's a right angle triangle of. देख रहे हैं आप लोग? This is a kind of building, and a person having 1.8 meter height, and he observes the top of the building. This is the top of the building. Now, if you take this is observation from that boy, this should be a horizontal line which is equal to this base line, ground line. So he creates an angle. That boy creates an angle, say theta, and it is a straight line through which he can see the top of the building. यानी इस अपने आंखों से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एक थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं. लाइन ऑफ साइट मीन्स this is the line between the observer and the object. Line of, what is the line of sight? It is a straight line between the, it is a straight line between the observer and the top of the building. So this is line of sight, and the angle is elevating. ये angle क्या हो रहा है? एक elevate हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है. जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस एंगल का नामकरण किया गया है ट्रिगोनोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन क्योंकि उठता हुआ एंगल है. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. अब यही केस हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज अ सिचुएशन लाइक दैट. नाउ दैट बॉय particular boy is on the top of the building. यानी वो लड़का अभी बिल्डिंग के टॉप पे है और वो ग्राउंड में पड़ी हुई किसी वस्तु को ऊपर से देखता है. उसमें भी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. ये भी लाइन ऑफ साइट होगा, लेकिन जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी उसके देखने का एंगल. चूंकि ये नीचे से ऊपर देखा जा रहा था, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन था. फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट वाज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड नाउ इट हैज, ही इज जस्ट वाचिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. ओके, तो टॉप टू बॉटम में उस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि बेस लाइन के पैरेलल है, वहां से जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऑल द सम्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, you can say every sum is related with the angle of depression and angle of elevation. तो ये टर्मिनोलॉजी आप सबों को याद करके रखना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा. एंगल ऑफ, आपने देखा कि ये तस्वीर किस प्रकार का, एक राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट हो रहा है, और ये बेस की तरह एक्ट हो रहा है. तो जब आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो चाहे यहां पे एंगल हो, चाहे कहीं पे भी एंगल हो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं एंगल का. हालांकि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपको 0, 30, 45,
60 और 90 के अलावे तो क्लास 10 में पढ़ना नहीं है। आप हायर स्टडी करोगे, वहां पे ज्यादा दूसरे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री से और बहुत सारे रिलेटेड आपको मिलेंगे। बट क्लास 10 है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे आप हर, जैसे ये थीटा है तो अगर ये 30 डिग्री है तो आप इसका हाइट निकाल सकते हो। मान लिया जाए ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनता है तो आप किस ट्रायंगल को एंगल थीटा लेंगे, या कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम किया है कि नहीं। दिस एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल, सो थ्रू विच दिस इज 30 डिग्री एंगल, so we know that the transversal, we know about the parallel lines and the transversal and the alternate angle, corresponding angle. So this is happening here or creating an alternate angle. So if it is 30 degree, it automatically becomes 30 degree. अगर ये 30 डिग्री है यहां से, तो ये और ये पैरेलल लाइन हुआ, ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं। तो अगर ऑब्जर्वर टॉप से किसी वस्तु को नीचे की ओर 30 डिग्री से देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल का एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस बिल्डिंग से 15 मीटर की दूरी पे हैं, इस बिल्डिंग से आप यहां हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इसके टॉप को देख रहा है, 30 मीटर 30 डिग्री है, और इसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है। और आप क्या हो, इस बिल्डिंग के बेस से 15 मीटर दूरी पे हो, तो 15 मीटर दूरी पे हो तो आपको निकालना क्या है, इसका हाइट। तो हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर और बेस आपके पास है, थीटा आपका 30 डिग्री है, तो कैन यू फाइंड इट आउट। पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10 हम जानते हैं, यहां पे अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मींस AB बाय OA इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ओके, 10 30 डिग्री। तो AB क्या है, इट इज द हाइट, और OA क्या है, 15 मीटर, और 10 30 कितना होता है, सभी को मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम है 10 30 याद नहीं करते हैं बच्चे, उसका भी हमने बहुत सारा टिप्स दिया था जो आपको याद ही होगा, और नहीं तो sin 30 बाय cos 30 आप निकाल लो। sin 30 तो sin और cos सबको पता होता है 1/2, और cos 30 √3/2 होता है, ये डिवाइड है तो इसका मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, √3 यानी 2 कैंसिल, यानी कि 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहां पे ये h is multiplied with √3, so √3h is equal to 15 and h equals to 15/√3. So we have got 15/√3 is the overall height, but this is denominator, you can rationalize it, आप इसको rationalize कर सकते हैं √3/√3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 15√3/3 और 3 5 यानी कि 5√3। आप आसानी से इसका हाइट आपने क्या निकाल लिया, 5√3, और √3 का वैल्यू तो 1.732 आप जानते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ओवरऑल आपका। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको इस हाइट एंड डिस्टेंस से मिल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम किस टाइप से मिल सकता है उसको मैं बताऊं। ऐसा सवाल पतंग का भी हो सकता है, काइट का, कि काइट जो है उड़ रही है ना, और ये धागा है, ठीक है, आप इस पे 10 मीटर दूरी पे है और इसका हाइट क्या होगा, तो ये भी आप आसानी से इस दोनों के रेशियो के रिलेशन से निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मान लो
कि दिस इज अ ग्राउंड and there is a kind of tower. यहां पे टावर है और यहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये छोटा सा टावर है, या आप इसको बिल्डिंग मान लो, इसको टावर मान लो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम इसको टावर मानते हैं तो ये बिल्डिंग पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो यहां से इसके टॉप ऑफ टावर को देखते हैं। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। मान लीजिए ये जो है 45 डिग्री है, या 30 डिग्री आप मान लीजिए, 30 डिग्री है। तो if this is 30 डिग्री, create a horizontal line, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये 30 डिग्री, तो this can be 30 डिग्री। और यहीं से इसके बॉटम को देखा जा रहा है, इसके बॉटम को देखा जा रहा है, तो ये भी एक क्रिएट हुआ, यानी ये एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो मान लिया जाए ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी एक का यहां इसका हाइट दे दिया गया, इफ द हाइट ऑफ दिस टावर इज 15 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड इट आउट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ओके, तो आप इधर देखिए, यहां पे इसके पैरेलल में ये है, तो इतना हाइट तो आपको पता हो गया कि यहां से यहां तक का हाइट आपका 15 है। तो आप इसको क्या करोगे कि अगर ये टोटल हाइट है h, तो ये हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 15 h से 15 माइनस कर लोगे, isn't it? This overall height will be of height, total height minus 15, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं। ये इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो इसके लिए आपको ये मिल जाएगा। इसको आप x मान लो, तो ये x हो जाएगा, मान लिया जाए। और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है ना। तो इस ट्रायंगल में से A, B, C, D और ये E, आप देखिए C, A और D में, इन ट्रायंगल CAD में tan 60 है, यानी कि हम लिख सकते हैं CD by AD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो CD क्या है, H है, और AD क्या है, X है। अगर ये X है तो ये भी X है, तो tan 60 कितना होता है। तो why did we get the x? So x root 3 is equal to h. So x equals h by root 3. x हो जाएगा h by root 3. अब आइए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल CBE में कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CE, परपेंडिकुलर CE, दिस इज CE एंड बेस इज BE एंड BE इज इक्वल टू AD, दैट इज x एंड दैट दिस इज tan 60, ये tan 60 है, ठीक है। तो C क्या होगा, C हमने निकाला है, C निकाला है h माइनस 15 बाय BE हमारा x है, ओके। और tan 60 कितना होता है, 1 बाय रूट 3। ठीक है। रीडिंग
sorry, this triangle is CBE, ये ट्रायंगल 30 डिग्री है, मैंने गलत से यहाँ पे 60 डिग्री लिखा, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का रूट 1/√3 होता है, तो ये tan 30 है। अगर आप देख सकते हैं CBE, ये एंगल 30 डिग्री है दिस वन, एंड ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 60√3 और ये CE/BE is equal to tan 30, that is 1/√3, okay। अब when you multiply, cross multiply, x is equal to √3 into h minus 15, तो यहां हमने देखा कि x इक्वल्स ये है और पहला दूसरा ये है, पहला ये है, द फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स h/√3 और यहां पे x इक्वल्स √3h/√3 into h minus 15। तो when you equate both, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा कि √3h minus 15 इक्वल्स h/√3। तो h इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3 into √3 क्या होगा, 3 into h minus 15 is equal to h, और 3h minus 45, okay, minus h equals 0, means 2h equals 45, hence h equals 45/2, that is 22.5 meter। I hope you have understood। मुझे लगता है कि आपको कुछ क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप में कमेंट्स करेंगे और कोई भी क्वेश्चंस को आप क्लिक करके मुझे सेंड कर देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। दूसरी कभी ऐसा भी आता है, आपको सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर, आई एम नॉट सॉल्विंग एनी सम्स। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए रोड है, ये चलता फिरता एक रोड है और रोड के दोनों बाजू मकान है, ठीक है, आपको एक सीढ़ी लगानी है जो कि 10 मीटर की है, ठीक है, और ये कोई हाइट दिया रहेगा और यहां पे कोई एंगल होगा। अब यही सीढ़ी को आप उलट के यहां करोगे तो इसका एंगल, मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री 45 डिग्री होता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये अगर दिया रहे तो आपको क्या करना है, एक ये डिस्टेंस, एक ट्रायंगल ये हो रहा है और एक ट्रायंगल ये हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक बार इसका बेस निकालोगे, एक बार इसका बेस निकालोगे इस ट्रायंगल से, ठीक है, और ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ओवरऑल हाइट निकल आएगा। उसी प्रकार अगर नदी बह रही है और ऊपर आपका ब्रिज है और आप यहां पे कहीं पे खड़े हैं, आप ऑब्जर्व करके नदी के एक किनारे पे देख रहे हैं एक एंगल बना के और दूसरे किनारे पे दूसरा एंगल बना के, मान लीजिए ऐसा है, आ रहा है ना, दूसरा एंगल बना के, मान लीजिए नदी है, तो आप नदी से तकरीबन ये ब्रिज जो है नदी के पानी से 10 मीटर की ऊंचाई पे है, तो आपका ओवरऑल कैसा है फिगर बन गया कि आपने यहां से ऑब्जर्व किया, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर। तो 10-30 से आप इससे आपका ये निकल आएगा, फिर इससे ये निकल आएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये ओवरऑल नदी का चौड़ाई, कितना चौड़ाई है वो निकल आएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल है, कुछ सवाल को मैं क्योंकि बनाना इतने कम समय में बताना भी मुश्किल है, so it will be better, so I am just showing you some solved example of NCERT and just and try to understand you, make you understand so that you can understand, so solve example of trigonometry which is related to the height and distance, okay.